I am completely opposed to the citizenship amendment bill. Firing হয়েছে, তো indiscriminate firing হয়েছে, but I am fundamentally opposed to the citizenship amendment bill. ওই দিকে হঠাৎ একটা রিয়াকশন ছিল. I think there was excess use of police force, but fundamentally শুধু ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ইনকোয়ারি দিয়ে তো কিছু হবে না. First we need to oppose and be firm. যে জায়গাতে ওয়াটার ক্যাননের দরকার ছিল, যে জায়গাতে টিয়ার গ্যাসের দরকার ছিল, ওই জায়গাতে ফায়ারিং করার দরকার ছিল না. বাট ইট হ্যাজ ক্লিয়ারলি বিন সিন দ্যাট অ্যাম্বুলেন্স উপর অ্যাটাক হয়েছে. কি দরকার ছিল? At people indiscriminately, video clearly evidence is clearly showing that they are fired at the people. Ambulance উপর অ্যাটাক হয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স কের উপর অ্যাটাক করে নাই. And most importantly, this sort of firing has not happened under the other government rule. This is unprecedented. I am shocked that the MLAs, the IPFT, the leaders, the MLAs are quiet on this incident. They do not even have the courage to go to the people and stand on the side of the truth. Poor people, you have come too far by promising Tipra land. How will you go and ask the central government to give you Tipra land? It is a joke. Ashamed of my leaders. I am openly saying I am ashamed of my leaders. They do not have the guts to speak for the people. Home Minister ache, je Chief Minister ache, onar opore to Home Ministry ache. If the Home Minister or the Chief Minister, they're holding the same post, they cannot take action, then he has to be answerable. This is a hogwash of an inquiry. এই পার্টি পুরো ত্রিপুরাতে বলল কি আমাদের আপনার পাওয়ারে নিয়ে আসলে আমি আপনার আলাদা রাজ্য দেব. এই পার্টি ক্লিয়ারলি ওনার ম্যানিফেস্টো ছিল আমি ত্রিপুরা ল্যান্ড চাই. আজকে ওই পার্টি একটা এসপি তে ট্রান্সফারের ডিমান্ড করতে পারে না. হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? দিস ল ইজ আনকনস্টিটিউশনাল. আর আইপিএফটি আমি আই এম শকড. আমার মনে ছিল কি এনসি দেব বর্মা, মেওয়ার, শুক্লা, ধনঞ্জয়, they are all son of the soil. So where is the son of the soil right now? Do not have any lobbies backing me. I've got enough offers of being MP, Rajya Sabha MP, minister post. আমি টাকা দিয়ে আমার পলিটিক্স হয় না. I have a commitment to the people of Tripura. আর প্রেশার কেন আয়? আপনার পোস্ট দিয়ে দেবেন, আপনার টাকা নিয়ে নেবেন, अपना प्लीज कीप साइलेंट. व्हाई शुड आई स्टे साइलेंट? एंड थ्रेट्स आने से कुछ नहीं होता है. हमको डर नहीं लगता. अगर मारना है तो मारो. क्या बोला उन्होंने? बोला जैसा महाराजा वीर विक्रम के माथे में 2 गोली मारा है, आप भी केयरफुल रहिए, आपका भी लग सकता है. हमको डराने से कुछ नहीं होगा. हमको छू के देखो, पूरा त्रिपुरा जल जाएगा. आप तो इलेक्शन के टाइम आप महाराजा के नाम में कुछ भी प्रॉमिस कर दो. इलेक्शन खत्म हो गया है, अब आप तोड़ो. इसी के लिए मैंने शुरू से कहा था, अगर आप महाराजा का दिल से आदर नहीं कर सकते हैं तो मुख्य अब जो पॉलिटिक्स में है उनका क्या विश्वास करें? आज एक बात बोलते हैं, कल दूसरा बात बोलते हैं. इंडिजिनस ट्रिपरीज हो, ट्राइबल्स हो, बंगालीज हो, नेपालीज हो, एवरीवन इज फेड अप ऑफ एमएलएज एंड मिनिस्टर्स जो अपना वादा पूरा नहीं करते. मैंने क्या बोला और मुझे थ्रेट करके उनको क्या मिलेगा? कुछ आपको लगता है कि मैं डरने वाला हूँ? मुझे छू के तो देखिए. मैं अगर त्रिपुरा में आग नहीं लग गया ना, अगर मुझे छुआ त्रिपुरा में आग लग जाएगी. और मैं किसी के अगेंस्ट भेदभाव नहीं करता हूँ. लोग हर चीज को कॉम्युनल बनाना चाहते हैं. और गोली मारने का क्या दरकार था? ये कश्मीर है क्या? उग्रवादी था क्या जो इसने प्रोटेस्ट किया? आप अरेस्ट कर देते, आप टीयर गैस मारते, आप वाटर कैनन मारते. पीठ में गोली मारा है, सीने में नहीं मारा, पीठ में मारा. मतलब कि भाग रहे थे तब गोली मारा है. आपने वीडियो फुटेज देखा होगा. और तब लोग ये आईटी डिपार्टमेंट का बोलता है कि महाराजा बंदूक चलाना नहीं समझता, इसके लिए ये कर रहा है. हमको क्या बोलना है कि हम बंदूक चलाना जानते हैं कि नहीं? इन लोगों को समझना चाहिए, हर चीज में पॉलिटिक्स लाने से स्टेट का क्षति होता है. हर चीज में वोट बैंक करने से स्टेट का क्षति होता है. और इस वोट बैंक में हम सब जो पॉलिटिक्स में सब इसमें शामिल है. पूरा दाल काला नहीं, पूरा दाल ही काला है. मैं मानिक सरकार का तारीफ करना नहीं चाहता, लेकिन ये सच बात है कि अंडर मानिक सरकार द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा उस समय ने ज्यादा मेच्योरिटी दिखाया. और उस समय गवर्नर
चाहता था कि लाठीचार्ज हो, उस समय होम मिनिस्टर चाहता था कि लाठीचार्ज हो। मैं उस समय, आज भी मैं कांग्रेस में हूं, तभी भी मैं मेवाड़ से मिला। मैं मेवाड़ को, धनंजय को, आईपीएफटी टीम को मैं किरण रिजिजू के पास ले गया और मैंने क्या कहा उस समय कि आप उनका डिमांड हाथ में रख लीजिए, हाँ बोलना ना बोलने का दरकार नहीं है। ये सिचुएशन डी एस्केलेट होगा, त्रिपुरा में टेंशन बहुत है बिटवीन द ट्राइबल्स एंड बंगालीज। आप एक बार मिल लीजिए और मिलने के बाद वो प्रोटेस्ट को विड्रॉ करेंगे, सिचुएशन में नॉर्मलसी आएगा त्रिपुरा में। उस समय होम मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा मेरे सामने मेवाड़ से मिलने से रिफ्यूज किया। मैंने कहा क्यों, तो उन्होंने कहा कि मुझे इंस्ट्रक्शन आया है अगरतला से कि आप मत मिलिए मेवाड़ जमातिया से। मेवाड़ के सामने से आप ये क्वेश्चन पूछ दीजिए। तो मैंने कहा अगर आपको इंस्ट्रक्शंस आया है कि त्रिपुरा में पोलराइज हो जाएगा सिचुएशन, तो फायदा किसका होगा? यू आर नॉट द होम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी, यू आर द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपका दायित्व बनता है कि टेंशन को एस्केलेट मत कीजिए। ये मैं, आप मेवाड़ कुमार जमातिया से पूछिए, मेरे सामने हुआ है ये बात लास्ट ईयर जब ये पूरा सिचुएशन खराब हुआ था। मैं ले गया, और मैं क्यों ले गया? कांग्रेस होके नहीं ले गया, मैं ले गया क्योंकि मुझे दंगा नहीं चाहिए था बिटवीन ट्राइबल्स एंड बंगालीज। उस समय बीजेपी नहीं मिलना था, वो चाहते थे कि सिचुएशन एस्केलेट हो, में मिलेगा। और मानिक बाबू और हमारा कोई दोस्ती नहीं है, पर्सनली दोस्ती है ही नहीं, लेकिन उस समय मैच्योरिटी दिखाया, स्टेट गवर्नमेंट ने मैच्योरिटी दिखाया। आज मैं पहली बार आपसे बोल रहा हूं, यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू मेवाड़ कुमार जमातिया, कैसा किरण रिजिजू ने मेरे सामने धनंजय और मेवाड़ कुमार जमातिया को बोला कि मैं उनसे नहीं मिल सकता हूं, मुझे इंस्ट्रक्शंस आया है अगरतला से कि इनसे ना मिले। और मेरा बात शुक्ला से हो रहा है, धनंजय से हो रहा है। यूथ आईपीएफटी इज वेरी अनहैप्पी। यूथ आईपीएफटी को दिल से खराब लग रहा है कि क्या हो रहा है। मैं इसी के लिए आवेदन करता हूं अपने आईपीएफटी भाइयों को, स्टेट के बारे सोचो, देश के बारे सोचो, अपने कम्युनिटी के बारे सोचो। हर चीज पावर और सत्ता से नहीं होता है। आज से 5 साल बाद पावर नहीं रहेगा आपके पास, तब आप क्या जवाब दोगे अपने लोगों को? इंस्ट्रक्शंस आया है दिल्ली में, दिल्ली से एक इंस्ट्रक्शन आया है, जो भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को ऑब्जेक्ट करो उनको सबक सिखाओ। यही तो इंस्ट्रक्शंस आया है दिल्ली से। इसके लिए आसाम में जो हमारा भूमि पुत्र है सर्बानंद सोनोवाल, वो हिरेन गोगोई जैसा 85 ईयर ओल्ड आदमी को ऊपर सेडिशन चार्ज करता है, त्रिपुरा में गोली मारा जाता है। ये इंस्ट्रक्शन आपको क्या लगता है कि बिप्लब कुमार देव ने क्या? ये दिल्ली से इंस्ट्रक्शन आया है, जो भी ओपोज करेगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल उनको सबक सिखाओ, को सबक सिखाओ। और जो हमारे अलाइज हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में, एजीपी को छोड़कर किसी में दम नहीं है, किसी में। ये पोस्ट जो मिलता है ना एमपी का, मेरे फादर को भी मिला है, मेरे माँ को भी मिनिस्टर मिला है, एमपी मिला है, ये पूरा जिंदगी नहीं रहता। आपके लोग आपके संग पूरा जिंदगी रहते हैं। आज अगर मैं राज्यसभा का एमपी बीजेपी से होता, आज मैं एमएलए बीजेपी से होता या सीएम बीजेपी से होता, 1 मिनट में मैं रिजाइन कर देता, 1 मिनट में मैं रिजाइन कर लेता, क्योंकि मेरा दायित्व तो बनता है हमारे लोगों के ऊपर। थैंक गॉड मैंने अपना आइडियोलॉजी को, अपना प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर उस समय मैं कुछ गलत कदम लेता ना, तो आज मेरा मुंह काला होता। इतना हार्ड, कम प्रेशर मिला था हम लोग को, लेकिन अगर हमने बेईमानी की अपने लोगों के साथ, तो कल मैं रात में सो नहीं सकूंगा, मेरा पब्लिक मुझे कभी इज्जत नहीं देगा। हमारे लिए क्या, पॉकेट में 5 रुपया भी हो, सम्मान है ना, काफी है। पैसे के लिए, पावर के लिए कुछ और बोलते, जब हाथ में आ गया पावर तो सब चुप। नहीं, आज अगर मैं बीजेपी का पार्ट होता, मुझे 2 मिनट में मैं रेजिग्नेशन दे देता। लेकिन मैं जो भी मैंने किया उस समय, आज मुझे लगता है कि मैंने ठीक किया। फिर दिल्ली हमको बताएगा कि त्रिपुरा के लिए ठीक क्या है, या त्रिपुरा बताएगा दिल्ली को कि त्रिपुरा का दिल में क्या है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट बिप्लब देव, बट उनको पहले जो सेंटिमेंट त्रिपुरा स्टेट का है उनके बारे में सोचना चाहिए।
आपके कैबिनेट में जब मैंने मेवाड़ से एनसी से बात किया, उन्होंने अपनी दिल में उनको क्या दुख लगा उन्होंने बताया है। वो कैबिनेट कुलीग हैं आपके, उनके बात सुनिए। ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा का एक कल्चर है। आज हांगराई है, आज संक्रांति है। हम लोग को सोचना चाहिए त्रिपुरा का एक कल्चर है, ये कल्चर को मत तोड़िए।